Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back online classes Peshawar Public School and College. Today you will receive your second mathematics lecture for class 6. I hope you will manage to understand your first lecture. If you have had any problem with anything, please write this in your notebook. Today is our topic types of set. Finite set. If a set has fixed countable number of elements is called finite set. For example, the element of set n are 1, 2, 3, 4, 5. Cardinality of set n मतलब ये है कि हमारे पास number of elements is equal to 5. The element of set A are 5, 10, 15, 20, 25, 30. Cardinality of set A equal to 6. The element of set B are A, E, I, O, U. Cardinality of set B is equal to 5. वो सेट जिनके एलिमेंट्स हमारे पास लिमिटेड हों तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं. Infinite set, if a set has uncountable number of element is called infinite set. For example, the element of set E are 0, 2, 4, 6, 8 and so on. Cardinality of set E equal to unlimited number of elements. The element of set O are 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Cardinality of set O equal to unlimited number of elements. The element of set W are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Cardinality of set W equal unlimited number of elements. अगर किसी सेट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं. Empty set. A set having no element is called an empty set. Symbolically we can write, दो सिंबल है हमारे पास. एक सिंबल हमारे पास ये है एम्प्टी सेट का, दूसरा हमारे पास ये है. Cardinality of set A equal to 0. For example, the set of months with 32 days. हमें पता है या तो हम महीना हमारे पास 28, 29, 30 का हमारे पास होता है. यहाँ पर हमारे पास गिवन स्टेटमेंट में है 32 days. It show empty set. The set of even number between 2 and 4. हमें पता है कि 2 और 4 के दरमियान हमारे पास कोई इवन नंबर नहीं है. It show empty set. The set of whole number less than 0. We know that whole number is started from 0, 1, 2, 3 and so on. It also show empty set. Singleton set. A set having only one element is called singleton set. ऐसा सेट जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट्स हो, जैसा कि हमारे पास देखिए 0, 2, नेम हमारे पास अनुसार. इट शो सिंगल्टन सेट. Equal set. Two sets A and B are said to be equal if they have same elements. Symbolically we can write set A equal to set B. For example, if the element of set A are 1, 2, 3, the element of set B are 2, 1, 3, then set A equal to set B. अगर हमारे पास
कोई से दो सेट्स हों और सेट ए के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद हों और सेट बी के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कार्डिनेटी एलिमेंट्स के लिहाज से वो हमारे पास इक्वल होते हैं। सिम्बॉलिकली वी कैन राइट सेट ए इक्विवेलेंट टू सेट बी। फॉर एग्जांपल, इफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर 1 2 3, द एलिमेंट ऑफ सेट बी a b c, cardinality of set a is equal to 3, cardinality of set b equal to 3, then we can say that set a equivalent to set b. Subset. Set A is subset of set B if and only if every element of set A is also an element in set B. Symbolically we can write set A is subset of set B. For example, if element of set A are 1 2 3 and element of set B are 1 2 3 4 5, then सेट ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब ये कि सेट ए के तमाम अरकान सेट बी में हमारे पास मौजूद हों, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ सेट बी। एग्जांपल नंबर 2, लिस्ट ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए। दैट इज़, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है और उसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है 2n। इट मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए कितने एलिमेंट्स हमारे पास है? 3। मतलब ये कार्डिनेलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3। 2^3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 8। देखिए हमारे पास एम्प्टी सेट 1 2 3। पहले देखिए सिंगलेटन सेट ले ले, इसके बाद देखिए 2 पेयर्स ले ले। देखिए 1 2 1 3 2 3, लास्ट में 1 2 3। रिमेंबर दैट अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे कि हमारे पास देखिए सेट ए में हमारे पास 1 2 3 और ऑल पॉसिबल सबसेट में देखिए हमारे पास लास्ट में 1 2 3, मतलब कि सेट ए एज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकंड नंबर देखिए द एम्प्टी सेट एज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब कि हर सेट में हमारे पास एम्प्टी सेट मौजूद होता है। जैसे देखिए हमारे पास 1 2 3, मतलब कि 4 5 ये नथिंग है हमारे पास, मतलब कि नथिंग एज ए सबसेट ऑफ सेट ए, इट शो एम्प्टी सेट। प्रॉपर सबसेट। Set A is a proper subset of set B if there is at least one element in B not contained in A. Symbolically we can write A is a proper subset of set B. For example, if the element of set A are 1 2 and element of set B are 1 2 3। अब देखिए सेट B में एक एलिमेंट्स हमारे पास एक है 3, मतलब कि हमारे पास सेट ए में नहीं है। देन वी कैन से दैट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब कि सेट बी में एक एलिमेंट्स या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास एक हो, 2 भी हमारे पास हो सकते हैं, 3 भी हमारे पास हो सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी, then A is called improper subset of set B. For example, if element of set A are 1 2 3 4 5 and element of set B are 5 3 2 4 1, then set A is improper subset of set B। मतलब कि जो हमारे पास सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं
वो हमारे पास सेट बी में भी हमारे पास है, देन वी कैन से दैट ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी. Now we start exercise 1.2, page number 9. Which one of the following set is infinite? क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10. क्या मतलब ऐसे, देखिए होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शामिल नहीं है हमारे पास. ओके कि लेस देन 10. सेकंड क्वेश्चन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10. व्हाट इज प्राइम नंबर? दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास 2, 3, 5, 7. द सेट ऑफ होल नंबर which start from देखिए 0, 1, 2, 3 and so on. The set of factors of 10 मतलब कि set of divisor of 10. 10 is divisible by 1, 2, 5 and 10. Question number 5, 7, 8, 10, 13. Question number 6, 1, 3, 5 and so on. इसमें सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आर इनफाइनाइट सेट, बाकी हमारे पास जो है वो हमारे पास फाइनाइट सेट है. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से करते हैं, देखिए पेज से. राइट द फॉलोइंग सेट एंड टेबुलर फॉर्म. द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचर नंबर, इट्स नोन एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कन्वर्ट इनटू टेबुलर फॉर्म. ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नेचर नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, विच स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5. देखिए यहाँ पर हमारे पास है 5 नेचर नंबर, ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 2, द सेट ऑफ फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर ए बी सी डी ई एफ. ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग सेट्स. नंबर 1, द सेट ऑफ ट्राइंगल विद 4 vertices. We know that a triangle has 3 vertices. It show empty set. क्वेश्चन नंबर 2, उम्र. एक एलिमेंट्स हमारे पास सिंगलटन सेट. और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट. सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी. According to the given statement, set A and set C are equal set. Every element of set A is element of set C. Every element of set C is element of set A. Then A and B are equal sets. Similarly, set B and set D are equal set. Question number 5. Which of the following are equivalent set? Use the symbol. Set A, set B, set C, set D. According to the given statement, set A equivalent to set B. Cardinality of set A is equal to 3. Cardinality of set B is equal to 3. दोनों में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं. Then we can say that set A equivalent to set B and set C equivalent to set D. Cardinality of set C is equal to 2. Cardinality of set D is equal to 2. मतलब कि दोनों के हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम है.
then we can say that set C equivalent to set D. That's all.